Good afternoon. And Good afternoon, Good ma'am. afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. good afternoon. Good afternoon, ma'am. And today I am going to take a very brief about literature review, and then I will discuss in detail open access, what open access is, and what open access literature which is useful for research. Okay. So all these topics I am going to cover in first session, and in the second session, second half, I would like to cover some research metrics which are very useful to all of you to know. Okay. So friends, let's begin with today's topic, that is literature review. And I would like to use all the three languages, that is Marathi, Hindi, and English, preferably Hindi and English. Okay, so that all will be able to understand it nicely. So friends, let's start with literature review first, and then we will go to open access. See, when we talk about research process, it involves various steps like formulation of research problem, framing of hypothesis, then the research design, measurement, collection of data, data analysis, and generalization in the form of conclusions. Again, there will be a new research problem and the cycle will continue. Okay. So, research is a cyclic process, and at each and every step, we depend upon information. We need information. Am I audible to all of you? हाँ बाबू Yes, madam, you are क्या audible. मैम Okay, ma'am. so Yes. let's continue. So, at every step of in research, we need information. So, friends, how your research topic should be. So, if you want to give the answer in a single word, what it should be, that we will see. Somebody will say it should be very honest. Somebody will say it should be useful for the society. Some would say something other things. Okay, but how your research topic should be. See here in this picture, you can see this man. उनके हुलिये से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जिंदगी भर रिसर्च किया है, and he ended up the research with the end product will, जिसका आविष्कार सदियों पहले हो चुका है, and he is asking the patent examiners to grant him a patent for his invention. But this is not possible because it is duplication of research. This man has wasted all his energy, money, and all other resources in duplication of research. So, your topic should not be duplicate. This is the first requirement, and your topic should be new. That means your topic should be new. So, this is the single word. That is, novelty should be there, and you should prove the newness of your topic. Okay, that is the very first requirement. And to justify that your topic is new, you will have to conduct thorough existing literature review. That is the requirement of every research. Okay. So, what literature review is? Literature review is actually a discussion of your knowledge about the topic under study. It is a discussion of your knowledge that is supported by research literature, and of course it should lay a foundation for your study. Now, what research review is not? Okay, see here in this slide you can observe one thing, that this is one reference, this is second reference, this is the third reference, right? Now, what is actually the arrangement? See, J, H, S. It is not seems to be alphabetical. Then 1964, 1964, 1965. Yes, it is chronological arrangement they have followed. See friends, there are three types of basic arrangements one can follow in writing review of literature.
सबसे पहली होती है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट बाय ऑथर्स सरनेम। लेकिन ये जो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होती है उसका एक लिमिटेशन होता है कि सपोज आई एम वर्किंग ऑन नैनो पार्टिकल्स, ओके। सो नैनो पार्टिकल्स पे जिसका नाम सरनेम ए से शुरू होता है वो आदमी भी लिख सकता है, जिसका सरनेम जेड से शुरू होता है वो भी लिख सकता है। तो एक ही थीम के दो आर्टिकल्स, एक आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में आएगा और दूसरा आपके चैप्टर के एंड में जाएगा। So the related references are scattered in this particular arrangement. And second one is chronological. Chronological means according to its publication date. लेकिन ये अरेंजमेंट कब फॉलो की जाती है? जब you try to trace the trends, that is the development of the subject, okay, historical development of the subject, then you can go by chronological order, right? But the very best one is the thematic order. You should follow thematic order in writing your review of literature chapter, right? अभी देखिए, जब भी आप ये स्लाइड देख रहे हो तो आपको ऐसे नहीं लगता दिस इज वन रेफरेंस, दिस इज अनदर आर्टिकल, दिस इज थर्ड आर्टिकल, ओके। तो whenever you read such type of review, तो आपको क्या लगता है कि you are reading it in patches, टुकड़ों टुकड़ों में आप उसको पढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट abstracts that टू abstracts which are provided by the author in his paper, उसको लेके कॉपी पेस्ट किया है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। So this is the don't aspect of review of literature. See, review of literature is not a study by study or article by article description of studies previously done. It is not also a restatement of the studies previously done. And it is not also taking a brief overview of the articles. Then what it is? That we will see in next slides. Okay. The slide is visible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am, clearly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. So what are the goals of writing review of literature? It demonstrates the familiarity with the body of knowledge and to establish the credibility, to show the path of prior research and how your project is linked to it, to integrate and summarize what is known in that particular area, and to learn from others and stimulate new ideas. So these are the basic goals of conducting a review of literature. Then why literature review is conducted? The very first reason to conduct this review of literature is to identify the gaps in research. अभी देखिए, जैसे मेरा टॉपिक एक ब्रॉड टॉपिक है और वो टॉपिक के सब थिंग्स ए बी सी डी ई 5 सब थिंग्स है। अभी whenever I go for searching for literature, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ए जो थीम है उसके ऊपर लोगों ने बहुत काम किया है, एम्पल ऑफ आर्टिकल्स आर अवेलेबल। बी जो थीम है उसमें थोड़ा कम है, सी पे तो बिल्कुल ही कम है, लेकिन डी और ई में फिर से मुझे अच्छे आर्टिकल्स मिल रहे हैं, अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। दैट मीन्स बी एंड सी, दीज बोथ थीम्स जो है वो रिसर्च टॉपिक के लिए फेवरेबल है, क्योंकि उस विषय में लोगों ने ज्यादा काम नहीं किया है। सो देयर इज अ स्कोप फॉर यू टू डेवलप दोस सब थिंग्स। Again, to avoid the reinventing the wheel, that is duplication of research. जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करते हो तो यू कैन इजीली अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्ट करने का एक सबसे मेन काम है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक को लोगों ने कहाँ तक रिसर्च करके छोड़ दिया है, यू हैव टू कैच दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट से अभी हम शुरुआत करेंगे, यहाँ तक उस सब्जेक्ट को लोगों ने लाके रखा है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर माय थीसिस। वो अगर आपको पकड़ना आ गया तो समझो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर
बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन गया। ओके, इसमें आपको और भी कुछ फायदे हैं कि जैसे सिमिलर फील्ड में जो पायनियर्स है कौन है, बाकी रिलेटेड रिसर्चर्स कौन है, वो आपको पता चलता है। आपका उस सब्जेक्ट एरिया में नॉलेज बढ़ता है। देन किसी के अपोजिंग व्यूज है तो आपको पता चलता है। दूसरी चीज, किसने क्या रिसर्च मेथड्स का यूज किया है वो भी आपको पता चलता है। एंड लास्टली, it will justify your study, it will justify your topic that it is a new topic for research, right? किसी और ने अभी तक वो टॉपिक पे काम नहीं किया है। तो ये सब समझाने के लिए यू हैव टू कंडक्ट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नाउ अभी आपको एक अच्छा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। प्री रिक्विजिट्स क्या है? सबसे पहला है, you should have knowledge of the use of indexes and abstracts। मतलब हर विषय में इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज होती है। तो वो सर्विसेज आपके विषय में कौन सी है, वो सबसे पहले आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर लाइब्रेरियन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। देन दूसरा होता है कि आपको यू शुड हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट एग्जॉस्टिव बिब्लियोग्राफिक सर्चेस। देखिए, you are using Google. Google is a search engine, general search engine. Whenever you put keyword in Google search boxes, you will get a number of results, maybe hundreds and thousands. तो इतने सारी चीजें आपको कभी कभी बहुत ही ब्रॉड मिलती है, कभी कभी रिलेटेड मिलती है, कभी कभी कमर्शियल मिलती है, जो आपको पे करना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो एडवांस सर्च के ऑप्शंस होते हैं बिब्लियोग्राफिक सर्चेस के लिए, उसको आपको आना जरूरी है। यू मस्ट नो व्हाट बुलियन सर्चेस आर, व्हाट एंड और नॉट ऑपरेटर्स आर। तो इसका नॉलेज आपको स्टार्टिंग में ही होना बहुत जरूरी होता है, सो दैट यू कैन कंडक्ट efficient and effective bibliographic searches in any database, indexes, abstracting databases, or even the search engines. Okay. Then thirdly, you should have the ability to organize the collected data meaningfully। आपका डेटा जो है वो हाइपरजार्ड वे में पेन ड्राइव में पड़ा है, हार्ड डिस्क में पड़ा है, तो उसको आपको मीनिंगफुली मैनेज करना आना चाहिए। Should have the ability to describe, critique and relate each source। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए 100 आर्टिकल्स शॉर्टलिस्ट किए, तो उनको डिस्क्राइब कैसे करना हो, साइज कैसे करना, और वो 100 को एक दूसरे के साथ में को रिलेट कैसे करना, ये एबिलिटी आप में आना जरूरी होता है। देन लॉजिकली अरेंजमेंट्स आपको आना चाहिए, कैसे इन सब आर्टिकल्स को अरेंज करना है। एंड you should also have the knowledge of style manuals for citing all these resources you have used for your research। that is citation कैसे देना, वो आप में स्किल जो है और वो नॉलेज आपका डेवलप होना चाहिए रिगार्डिंग स्टाइल मैनुअल्स फॉर गिविंग द रेफरेंसेस। so these are the prerequisites। now how to organize the literature search? See, I have already told you that three basic arrangement you should follow. The first one is alphabetical. I have also told you the limitations of this. Then chronological, and the very convenient one is thematic। और ये thematic arrangement में भी you should follow tree-like structure। See, this is the main stem. Then these are the branches, and again there are sub branches like that। So you should start from general and go to specific। So this arrangement should be followed in writing your review of literature chapter। Now, for example, this is the example from the period of education, like home visits। So here they have divided and the main theme home visits into 4 sub-themes. That is homeschool communication, academic and achievement, parent involvement and volunteerism। Again, parent involvement, they have
subdivided into barriers to parent involvement. Here, barriers to volunteerism. So, in this way, you should prepare a skeleton of thematic basis first. Okay, that is the need. Then, how to organize the review of literature. देखिए ये जो चैप्टर होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स लगते हैं। दूसरी चीज, उसको लिखने के लिए वोकैबुलरी आपका सुदृढ़ होना आवश्यक है। तीसरी चीज, यू मस्ट नो द टेक्निकल नॉलेज हाउ टू राइट दिस चैप्टर। अगर आप ये सब चीजें नहीं करते हैं तो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर जो है वो प्लेजरिज्म में हाईएस्ट परसेंटेज लेता है। और प्लेजरिज्म के बारे में मैं आपको कल बताने जा रही हूँ। तो कल का पूरा दिन जो हमारा एथिकल एस्पेक्ट्स पे होगा, कल नहीं नेक्स्ट क्लास जो भी मेरा होगा 19th को, तो प्लेजरिज्म अगर 10% से ज्यादा है तो आपको थीसिस सबमिट करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये चीज को ध्यान में रखिए। सो to avoid that, you should take special precautions while writing this particular chapter. अभी मैंने एक चीज आपको और कही कि you should collect the data systematically. तो कैसे सिस्टमेटिकली कलेक्ट करें? तो आप जब भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए पढ़ते हो लिटरेचर को, आपको एक पेपर मिला, राइट? तो आप क्या करते हो जनरली कि उसको सेव एज करके आप उसमें पेन ड्राइव में सेव कर लेते हो। एक फोल्डर बनाते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का और आप उसमें पेपर सेव करते जाते हो, सेव करते जाते हो। ऐसे ही 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, फिर आपको ऐसे लगता है कि अभी चैप्टर लिखना जरूरी है। सो आपके गाइड आपको पूछते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर की तैयारी क्या है। सो यू टेल हिम और हर दैट कि मेरे पास तो बहुत आर्टिकल्स है मैडम, आराम से हो जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, करो। अभी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के उसी फोल्डर को ओपन करते हो 2-3 साल के बाद में, तो आपको ये चीज ध्यान में आता है, जब आप सेव एज करते हो तो उसका यूआरएल बदल जाता है, पाथ चेंज होता है। क्योंकि जब वो ऑनलाइन था आपके स्क्रीन पे, तब एग्जैक्ट यूआरएल दैट इज वो एक्चुअली www पे कहाँ है वो यूनिक एड्रेस आपको मिलता है। लेकिन आप ऑफलाइन उसको पेन ड्राइव में सेव करते हो फॉर फर्दर यूज, तो आपका वो पाथ चेंज हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, रेफरेंस देने के लिए आपको वो यूनिक एड्रेस तो चाहिए। अगेन यू गो टू गूगल, अगेन यू टाइप द टाइटल और कीवर्ड्स, अगेन यू रिट्रीव द पेपर एंड यू नोट डाउन दैट। तो ये सब करते वक्त में आपको एक चीज ध्यान में आती है कि आपने 2 साल पहले जो सेव किया था वो अभी पेज वहां पे है ही नहीं, गायब हो गया। क्योंकि www ये एक ऐसी चीज है, इट इज फ्रिक्वेंटली अपडेटेड, तो कुछ कुछ चीजें मिल नहीं रही आपको फिर से। दूसरी एक दुविधा आ गई कि और नई बहुत चीजें मिल गई, तो आपका काम क्या होता है, जीरो से शुरू होता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इस पेपर का जब भी मिले एक प्रिंट आउट ले लीजिए, राइट? उसके ऊपर में एक ब्लैंक A4 पेज स्टेपल कर दीजिए और उसके बाद उसको पढ़िए, पेपर को पढ़िए। पेपर को पढ़ते वक्त में आप उसके बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स जो है, जो आपको साइट करने के लिए लगते हैं, तो पूरे बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स वो पेज पे नोट कर लीजिए। ऑथर ने जो एब्स्ट्रैक्ट लिखा है उसमें से यू टेक द की पॉइंट्स ओनली, डोंट कॉपी एंड पेस्ट द एब्स्ट्रैक्ट गिवन बाय द ऑथर। एक चीज को ध्यान में रखिए, तभी प्लेजरिज्म कम होगा। देन यू गो थ्रू द पेपर और ऑथर ने अपने एब्स्ट्रैक्ट में जो चीज नहीं लिखी है लेकिन आपको लगता है कि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर डिस्कशन पर्पस, तो वो पॉइंट्स भी पूरे आप डाउन करके लिखिए। ये आपका प्रिपरेशन हो गया उस आर्टिकल के लिए। अभी लास्ट एक चीज और करनी है, और वो चीज है कि आपने वो आर्टिकल कौन से दिन डाउनलोड किया है, उसका डेट भी आप नोट डाउन करके रखिए। और एक चीज इम्पोर्टेंट है
कि मैंने कहा कि यू शुड फॉलो थीमेटिक अरेंजमेंट। तो आपने लिटरेचर रिव्यू करते वक्त में आपने देखा होगा कि ए थीम है, उसके ऊपर आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं, बी मिल रहे हैं, सी मिल रहे हैं, डी मिल रहे हैं, ई मिल रहे हैं। तो ऐसे मेन थीम्स जो है जिसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल रहे हैं, तो उसका एक स्केलेटन बनाइए। सपोज ये आपने जो आर्टिकल डाउनलोड किया है और उसके नोट्स निकाले हैं, सपोज इट इज बेस्ड ऑन थीम ए, तो आप उसके ऊपर में स्केच पेन से बड़े अक्षरों में ए लिख दीजिए। दैट मीन्स दिस पेपर यू आर गोइंग टू डिस्कस अंडर द थीम ए इन योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर, और उसकी फाइल एक अलग बना दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एक आर्टिकल है, उसमें थीम ए भी डिस्कस होती है और थीम सी भी डिस्कस होती है, दो थीम डिस्कस होती है। तो आप वहां पे ऊपर में लिखिए ए एंड सी। दैट मीन्स आपको वो पर्टिकुलर पेपर थीम ए में भी डिस्कस करना है ए के कॉन्टेक्स्ट में, और थीम सी में भी डिस्कस करना है सी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस प्रकार से आपकी 5 फाइल रेडी हो गई, ए बी सी डी ई। और अभी आपको जो एक्चुअली चैप्टर राइटिंग का काम है, काम करना है। अभी ये जब आप चैप्टर लिखते हो तो ध्यान में रखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, द सेकेंड वन इज बॉडी ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, third one is summary of the chapter, and the fourth one is references you have used for writing this particular chapter. देखिए फिर से बताती हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, द थर्ड वन इज समरी टू द चैप्टर, एंड फोर्थ वन इज रेफरेंसेस। अभी जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे थीसिस में व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, definitions of review of literature, types of review of literature, arrangements of review of literature, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। Your thesis will be examined by the experts who know what literature review is. उनको फिर से सिखाने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट कम टू द बिजनेस। देखिए अभी पुराना जमाना गया, 500 500 600 600 पेजेस के थीसिस बनाने में कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, ज्यादा लिखो मत, क्योंकि ज्यादा लिखोगे प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर ज्यादा परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी निकालेगा। इसलिए यू शुड अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स इन राइटिंग। इसमें इंट्रोडक्शन में जस्ट 1 और 2 पैराग्राफ्स में आपके विषय को डिस्क्राइब कीजिए। वो होने के बाद में यू राइट हाउ मेनी आर्टिकल्स you have shortlisted for discussion in this chapter. Suppose you have shortlisted 120 research papers for discussion in for review of literature. You write there, researcher has selected 120 the most relevant research papers for discussion or taking the review in this particular chapter. Make it bold, 120 को क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए आपका जब ओपन डिफेंस होगा, तो ओपन डिफेंस में अगर एग्जामिनर पूछता है कि आपने कितने आर्टिकल्स का कितने आर्टिकल्स का रिव्यू किया है, तो आप कहेंगे 100 90 100 90 या 100। अब अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है तो एग्जामिनर तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ लेगा, 90 या 100, क्या आपको पता नहीं है? आपने ही किया है ना। तो ऐसे इंटीग्रेटेड आउटपुट होने वाले क्वेश्चंस जो है वो पहले ही नहीं आने देना। टू राइट ए वी हैव सिलेक्टेड 120 रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में फ्रॉम वेयर यू हैव सिलेक्टेड, आपने ये कहाँ से लिए, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट विल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ योर पेपर्स व्हिच यू हैव डिस्कस्ड इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर आपने कहा कि हमने वो गूगल से लिए हैं, विकिपीडिया से लिए हैं, खत्म बात वहीं पे, इंप्रेशन निगेटिव। यू राइट कि हमने ये स्कोपस में देखा, वेब ऑफ साइंस में देखा,
हमने हमारे एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेसेस में लिखा, जैसे साइंस वाले लिख सकते हैं कि वी हैव सर्च्ड इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस फॉर दिस। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो होती है वो ऑनलाइन सर्विस है। 1965 से इंडिया में जितने भी साइंस के जर्नल्स पब्लिश होते हैं, उस जर्नल में हर इशू में पब्लिश्ड हर एक आर्टिकल का बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स और एब्स्ट्रैक्ट उसमें होता है, और इट इज अवेलेबल, दिस सर्विस इज अवेलेबल, जैसे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, तो ये सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है एंड यू कैन ब्राउज एंड सर्च विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। You write कि we have searched science direct database. You write that you have searched the resources in eShoda Sindhu. Okay, then you can write you have also consulted for thesis sorry, Shoda Gangotri and Shoda Ganga for that. Okay, ये सब लिखिए आप उसमें। तो लाइब्रेरी साइंस का अगर कोई है तो दे कैन राइट वी हैव सर्च्ड इन लिसा एंड लिस्टा एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। ये तीसरा पॉइंट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, 1 or 2 पैराग्राफ। How many sources you have selected? The third one is from where you have selected all these papers. Okay, ये हो गया। फिर चौथा पॉइंट आपको देना है, how you have arranged the discussion point. हेलो इसमें मैम। आपको लिखा है, हेलो हेलो मैम। मैम बोलो। स्लाइड कौन सी चालू है? क्योंकि स्लाइड ऑर्गेनाइजिंग लिटरेचर वैसे ही दिख रही है, वही चल गई। नंबर के फॉर्म में नहीं दिख रहे मैम कुछ। ऑर्गेनाइजिंग द लिटरेचर वही स्लाइड चालू है क्या? वही स्लाइड शुरू है, मैं आपको उसके डिटेल्स बता रही हूँ। अभी हमारा ये सेक्शन चल रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहा कि एक या दो पैराग्राफ में आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन कीजिए। दूसरा पॉइंट, हाउ मेनी रेफरेंसेस यू हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर डिस्कशन, और नंबर लिखिए। ये आपने कहाँ से लिया है वो लिखिए, एंड देन यू गिव द थिंग्स हाउ यू हैव अरेंज्ड इट। मतलब आपने थीमेटिक अरेंजमेंट फॉलो किया है तो गिव द थीमेटिक स्केलेटन ओवर देयर। सो अंडर इंट्रोडक्शन you will have to give the details about these 4 things. समझ में आया ओके। अभी? हाँ मैम। समझ में आया आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या देना है? हाँ मैम। Only four things you should mention in the introduction. 1 or 2 टॉपिक्स में आपको इंट्रोडक्शन देना है आपके रिसर्च टॉपिक का। उसके बाद में हाउ मेनी पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड फॉर डिस्कशन, from you where you have taken all these papers, and fourthly how you are going to arrange that thematic skeleton you should provide in introduction. This is the first part. Then second part होता है body of review of literature. Okay, बॉडी ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि आपने जो ए बी सी डी एंड ई ऐसे 5 थीम्स बनाए हैं, तो यू गो टू द फर्स्ट थीम। ठीक है, मैंने थीम ए लिया और उसमें मैंने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ थीम ए। देन हाउ मेनी पेपर्स अंडर थीम ए यू आर गोइंग टू कवर। सपोज 20 पेपर्स मिले मुझे थीम ए में। इसके लिए मैंने पूरा जो ब्लैंक पेज लगा के खुद के नोट्स निकाल के तैयार करके रखे हैं, वो 20 आप आपके सामने ले लीजिए। ओके, तो राइट देयर दैट we are going to discuss 20 selected the most relevant papers to theme A, right? वो आपने लिखने के बाद में you start with first paper, second paper, third paper, fourth paper, like 20 papers। आपके जो नोट्स है उसके आधार पे आप वो 20 को डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब करने के बाद में आपको वो 20 में कोरिलेशंस दिखाना है। दैट विल बी द थर्ड सेक्शन, दैट इज समरी फॉर सेक्शन ए। सेक्शन ए थीम जो है आपका, तो ये 20 पेपर्स का जिस्ट आपको आखिरी में समरी में लिखना है। इसमें आपको क्या करना है देखिए, इन दिस वे ओनली यू कैन अवॉइड प्लेजरिज्म। में आपको बताना है कि थीम ए में सपोज ऑथर 1 he has followed this research method,
फिर आपने देख लिखना है कि ये 20 में से 5 लोगों ने सेम रिसर्च मेथड का यूज किया है. दीज आर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस, राइट. फिर ऑथर बी के जो ये है ना फाइंडिंग्स, वो ऑथर डी से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको ये दोनों के ओपिनियन एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट है. तो ऐसे कोरिलेशंस निकाल के आपको जिस्ट लिखना है खुद की लैंग्वेज. दैट विल बी द कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर थीम ए. अभी थीम ए का 20 पेपर का निपट गया. आपने खुद के इसमें जिस्ट भी लिख दिया इस पेपर को डिस्क्राइब करने के बाद में. देन नाउ यू हैव टू कम टू सेक्शन बी, दैट इज थीम बी, राइट. अभी थीम ए छोड़कर थीम बी जब आप लिखते हो तो बीच में एक ट्रांजिशन पैराग्राफ देना आवश्यक होता है जो ए और बी थीम का कोरिलेशन दिखाए. मतलब जो पढ़ रहा है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसको एकदम से धक्का नहीं लगना चाहिए, राइट. धक्का नहीं लगना चाहिए कि एकदम से अभी थीम ए चल रहा था एकदम दूसरे थीम पे हम आ गए. तो आपको स्मूथली उसको थीम बी पे लैंड करना है. फॉर दैट अ ट्रांजिशन पैराग्राफ इज नीडेड. सी दीज आर ऑल टेक्निकल पॉइंट्स इन राइटिंग द रिव्यू ऑफ लिटरेचर. सी राइटिंग ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर requires skill, strong vocabulary, and also your analytical power. That these things are the prerequisites. ये चैप्टर लिखना इजी चीज बिल्कुल भी नहीं है. इसको उतना अटेंशन देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. यू आर ऑल पीएचडी एस्पिरेंट्स और आपको सबको प्लेजरिज्म चेक को फेस करना है. इसलिए मैं आप बहुत आराम से समझा के बता रही हूँ ऑल टेक्निकल पॉइंट्स इन राइटिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर टू अवॉइड द सिमिलैरिटी, राइट. अभी आपने ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखा. देन कम टू थीम बी. इंट्रोड्यूस थीम बी इन वन पैराग्राफ. बी के आपको 10 पेपर मिले, राइट देयर कि ओवरऑल 10 रिलेवेंट पेपर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द थीम बी. ओके. देन ये पूरे 10 का जो ये है आपके पास में नोट्स लिखे हुए हैं, वो सबको आपको डिस्क्राइब करना है 10 को. उसके बाद में ये 10 का जिस्ट और आपके ऑब्जर्वेशंस करके आपको थीम बी की समरी लिखनी है. अगेन बिफोर प्रोसीडिंग टू थीम सी आपको एक ट्रांजिशन पैराग्राफ बीच में देना है जो बी और सी को कोरिलेट करे. तो इस प्रकार से आपको पूरे ए बी सी डी थीम को लिखना है. वो लिखने के बाद में यू हैव नाउ एग्जॉस्टेड ऑल योर 100 पेपर्स जो आपने. Now, the third part is overall summary of the chapter, and this is compulsory required in this chapter. देखिए, अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर के लिए द ओवरऑल जिस्ट आपकी लैंग्वेज में आपके ऑब्जर्वेशंस को लेके नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर का बैड रिमार्क रिपोर्ट में आएगा. Okay? So you should conclude the chapter with the proper summary. ठीक है. आपने वो समरी लिख दिया, वो पूरे चैप्टर का जिस्ट लिख दिया. देन आपको रेफरेंसेस सेक्शन लिखना है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. दैट मीन्स ये पूरे 100 पेपर्स जो आपने यूज किए हैं उसके पूरे पूरे रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू स्टाइल मैनुअल एज पर योर यूनिवर्सिटी डायरेक्शन. Whether it may be APA style manual, it may be MLA, it may be Chicago, it may be Harvard, it may be IEEE. तो आपको वो रेफरेंसेस उस हिसाब से अरेंज करने, तभी आपका ये चैप्टर जो है वो पावरफुल चैप्टर बनेगा. एंड यू कैन आल्सो prepare one review article for the journal publications. So friends, मैम एक्सक्यूज मी वन डाउट. yes. मैम मैम आपने ये थीम ए थीम बी थीम सी बोल रहे हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली मींस थीम मींस just if you could. See, suppose your broad topic is some broad Lip- topic you have taken for your research, right? So Yeah. whenever you search, see, आप जब भी सर्च करोगे उस टॉपिक पे तो आपको उसके वेरियस डायमेंशंस मिलते जाएंगे कि लोगों ने जैसे
plagiarism is your ethical aspects in research. Suppose your topic of PhD is ethical aspects in research publications. Okay. तो Okay. आपको जो भी लिटरेचर मिलेगा वो प्लेजरिज्म पे मिलेगा, उसके बाद में आपको फैब्रिकेशन ऑफ डेटा पे मिलेगा, फिर फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा पे मिलेगा, फिर आपको एक सेक्शन ऐसे मिलेगा कि जिसमें केस स्टडीज यू कैन केस स्टडीज लोगों ने हाईलाइट किए उनके पेपर्स में, फिर एथिकल गाइडलाइंस वाले एक पार्ट मिलेगा आपको। तो दीज विल बी द सब थीम्स। तो ये सब थीम्स आपको आपके विषय के निकालने हैं, थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी, हर एक अच्छा। टॉपिक के अनुसार ये सब थीम्स अलग अलग होंगे। सो एकदम 120 पेपर्स का रिव्यू करना, उनको कोरिलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपने क्या किया, उसको शॉर्ट थीम्स में डिवाइड करके रखा। So then it has become easy for you now to correlate the things and go for the discussions. Like for Have you example, got the point? yeah, like my topic is management and labor, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ आ गया, लेबर से कुछ, तो उसको मैं थीम वाइज डिवाइड कर दूं और दोनों को इंटर रिलेट करके को रिलेट करके दिखाते जाओ, आप ये बोलना चाह रहे Yes, you can show that thing. हैं? ओके, थैंक यू। Madam, I have a Like, question. yes. While referencing Ah, or citing the literature, yes. there is an inbuilt referencing tab in Microsoft Word, so which Yeah. gives various styles, APA styles. So while I have written some research papers, so that Yeah. at that time I have used that tab because it Yeah. becomes easier. Because if you manually try to do it, it is very tedious. So is that okay to use that reference tab in Microsoft Word? Yes, it is absolutely okay. And And see, friends, I'm going to tell you that also in my lecture. okay, And if you want some advanced techniques and tools, then Mendeley is there, then yeah, I have online heard reference about. management system Zotero is there, EndNote is there. Okay, so all these facilities are available, but the very convenient and available to all is our MS Word utility. Yeah, madam, if in your session, if you can talk about Mendeley, it would be useful because I've heard a lot about it. Sir, actually, Mendeley, I'm not going to talk because the very first thing is it is subscription based one. Okay, Okay. Mendeley. And secondly, it will again require 2 hours Oh, to okay. demonstrate either Zotero or Mendeley. It will take another 2 hours. Okay, So, fine, ma'am. so let me first cover the topics assigned to me, right? And then if time permits, I will take that particular topic in brief. Will Okay. it be okay? Yes, ma'am, surely, sure. Okay. So, introduction is the first part, body of review of literature is the second part, the conclusion, the overall conclusion of the chapter is the third part, and then give the references, that is the fourth section. And in this way, you have to organize the review of literature in your thesis, right? So friends, now I am coming to another part, but before that, let me tell you one thing. जैसे एक प्रश्न आया था कि can we utilize that MS Word utility, okay, for giving the references? Yes, answer is yes, you can and you should use because it's very easy to know. Uh, um, while concluding this lecture or in next lecture, I will show the small demonstration of that also. But I would like to clear one question for this particular class, that is what is actually the difference between reference and bibliography. Can anybody tell me what is the difference between references and bibliography? Yes, anybody wants to talk on this particular thing? Ma'am, can I try?
Yes. Ma'am, I'm just Yes. trying. References means, for example, like suppose if an article which I have picked up, from where those are the references and when it was published and all. And in bibliography, we mention the author and everything, and we give them due credit. Is it so? No. Anybody else wants to? Ma'am, Yes. I just want to try. Yeah. Hello. Ma'am, Yeah, try. ma'am, same reference. I think it's more of articulation and the paperwork, the articles which we have used or written. And videography, I think it's the pictorial representation, more of graphs and all. No, not at all. Anybody else wants to say anything about it? Ma'am, for bibliography, whatever the list of resources that we have used throughout the research, Yes. And what are references? any particular literature that we read, and from that we take some ideas. So we give them credit. That is references, Yeah. ma'am. So my next question is, whether you have to repeat all the references in your bibliography? Yes, sir. No, ma'am. नहीं, अभी जिसने कहा था उनके लिए प्रश्न है, जिन्होंने हाँ बिब्लियोग्राफी और यस हाँ हाँ मैम, बलबुदे. हाँ यस मैम. So मैम all the references I must repeat in bibliography, right? मैम Yes, ma'am. यही कंफ्यूजन है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Confusion है. Now I will. Madam, can I try? Yes, you can try. Yeah, madam, I think when we write in-text citations while quoting the papers or sources that we have used, they constitute references. Right. And so in bibliography, it is references plus additional sources that we have used, maybe some websites or books or all that. We include that also, which may not be there in in-text citations. Okay. So you are saying that bibliography must include all the references you have used. Yes. Okay. Yeah, Okay. that's the So understanding. fine. Yeah. Fine. Your answer is partially correct, right? So I will Okay. explain you actually what is the thing. Okay. See, references जो होते हैं वो चैप्टर के एंड में दिए जाते हैं. Am I right? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. हर चैप्टर के बाद में you are giving the references. Those you have used to write that particular chapter. Bibliography you always give at the end of your thesis. Do you agree? Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. this is something new I came to know about. We have to give references at the end of each chapter. Yes. 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 Have मैडम you seen the? फुटनोट भी देते हैं ना मैडम हम वहाँ पे? देखिए मैं आपको बताती हूँ. फुटनोट भी देते हैं, लेकिन फुटनोट जो देते हैं दैट इज एक्चुअली द पॉपुलर वे इन बुक पब्लिकेशंस. लेकिन थीसिस पब्लिकेशंस में क्या होता है, थीसिस में क्या होता है कि थीसिस में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस होते हैं. सो मैनेजमेंट ऑफ द लिटरेचर की दृष्टि से अगर हम देखे जाए तो उसको चैप्टर के एंड में देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस हम देते हैं. और ये प्लेजरिज्म जो चेकिंग होता है आजकल, तो उसकी वजह से आपको एक भी क्रेडिट जो है वो मिस करना बहुत तकलीफदायक होता है आगे चल के. तो हर एक को क्रेडिट देना जरूरी होता है. और फुटनोट्स में कभी कभी क्या होता है कि जो आप लिखते हो टेक्स्ट, ठीक है ना, तो वो टेक्स्ट की जगह कम होती है और फुटनोट बढ़ते जाता है आपका. और फिर कभी कभी क्या होता है उसको
सेटिंग करना मुश्किल होता है। कभी कभी फुटनोट पे का रेफरेंस जो है वो अगले पेज पे चला जाता है, मैटर पिछले पेज पे आता है। तो ये सब टेक्निकल डिफिकल्टीज है जब आप उसको अरेंज करते हो। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका आप देखेंगे शोधगंगा में जाके, मैक्सिमम थीसिस आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज के, तो आपको हर चैप्टर के बाद में रेफरेंसेस मिलेंगे, दोज यू हैव यूज्ड फॉर योर थीसिस। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, रेफरेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट रेफरेंस, दैट मीन्स वो रेफरेंस आपके रनिंग टेक्स्ट में आता है, may it be in alphabetical format और numerical format। ठीक है, देखिए अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में है तो सर्कुलर ब्रैकेट में विद इन द टेक्स्ट ऑथर का सरनेम आता है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, राइट। और उसके बाद में अगर न्यूमेरिकल अरेंजमेंट करना है तो 1 2 3 4 सुपरस्क्रिप्ट में आते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं। If you are following circular brackets as the short reference, okay, तो आपको आखिरी में रेफरेंस जो आप अरेंज करते हो चैप्टर के एंड में, वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस से ही देने हैं। But if you are using numbers, that is numerical pattern 1 2 3 4 5 6, then you will have to arrange all the long references at the end of the chapter numerically, 1 2 3 4 जैसे आते हैं वैसे उसको अरेंज करना पड़ता है। These are the standards which I am telling you, right? तो आप कोई भी प्रकार से अरेंजमेंट कीजिए रेफरेंसेस की, बट इट इज अल्फाबेटिकल और न्यूमेरल, और वो रनिंग टेक्स्ट में शॉर्ट रेफरेंस आता है और उसका फुल रेफरेंस रेफरेंस सेक्शन में आता है, राइट। ये हो गया पहली चीज। अभी दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी ये आपके थीसिस के एंड में देना है, और उसमें ऐसा लिटरेचर आना चाहिए, ऐसे रेफरेंसेस आने चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, जो रेफरेंस सेक्शन में आपने दिया है उसी को बिब्लियोग्राफी में रिपीट करने में कोई मतलब नहीं होता है। एक ही चीज 2 बार थीसिस में लिखना बोले तो एग्जामिनर्स के एडवर्स रिमार्क्स आते हैं कि डू यू वांट टू इंक्रीज योर पेज नंबर्स इन योर थीसिस। समझ में आ रहा है ये चीज? सो अवॉइड टेकिंग ऑल द रेफरेंसेस इन योर बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स एडिशनल रीडिंग। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि आपके थीसिस का जो टॉपिक है उसका कुछ पेपर्स आप ट्रेस नहीं कर पाए, आपने नहीं देखा। रेफरेंस का मतलब क्या है कि आपने वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखा है, उसको रीड किया है, एंड यू हैव बोरोड आइदर टेक्स्ट और नंबर्स और फिगर्स और एनी पिक्चर from that, or idea also you have borrowed and you have used for writing that particular chapter, that becomes the reference, and for that you have to give the citation at the end of your chapter, okay. You also give the short citation as well as the brief citation, but bibliography means ऐसा एक कोई जर्नल है जो आपको लगता है कि ये पेपर भी अगले वाले ने पढ़ना चाहिए, मतलब जो अगला रिसर्चर है जो आपके टॉपिक को कंटिन्यू करेगा, उसके लिए जो रिसोर्सेस आपको मिले हैं उसका सबका नोटिंग आपका बिब्लियोग्राफी में आना चाहिए। दैट इज एक्चुअली, आप देखिए, आप आपके थीसिस में एक सेक्शन दे देंगे एरिया फॉर फर्दर रिसर्च, उसमें आप देखेंगे कि हमारे इस टॉपिक को हमने यहाँ तक लाया है, इसके आगे ये क्षेत्र है, फील्ड्स है जिसमें दूसरे लोग काम कर सकते हैं। तो वो क्षेत्र को कवर करने वाले कुछ रेफरेंसेस आपके 5 साल में आपको मिले, उसको नोट डाउन कीजिए एंड राइट इट इन बिब्लियोग्राफी एज द एडिशनल रीडिंग। समझ में आया सबको? अभी क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes. Yes. So shall I go ahead now? Yes, ma'am. So I am coming to some useful open access resources for your research purpose. I am going to demonstrate you some websites from where you can take the literature which is authentic literature, right? So it is rightly said by Jenny Erlich that technology can become the wings that will allow the educational world to fly further and faster than ever before, provided if we will allow it. देखिए आज का जो जमाना है, आज का जो टीचर है, आज का जो रिसर्चर है,
So he must be IT savvy nowadays. उसको पता होना चाहिए कि www पे हमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है. He should be aware about the quality of the resources also, e-resources. Then he should also be familiar with audio, video conferencing, then digital resources, then licensing systems, IPRs and whatnot. Okay. So these things are required for every researcher to know. Now what open access? Open access will give you the free, immediate, permanent, full text online access to the literature. I'm repeating what open access means. Open access is the concept under which you are getting free literature immediately, which is permanent in nature. You can access in full text and it is available online, that is 24/7 access is there. Okay, so this is the concept of open access. Why open access? It maximizes the research visibility so that its usage is enhanced, okay, and it increases the citations and impact, okay. So this is why open access is required. Now I'm telling you, this is the common experience. Whenever you go to Google and you give the keywords, so you will be getting a number of websites, right? Hundreds, thousands of websites. Then you will be getting e-journals, e-books, then e-newspapers, reference books, encyclopedias and whatnot. You will get and you will feel information overload. कि अरे इसमें से अभी कैसे लेना, कैसे क्या लेना. One peculiar thing you will be observed, you are going to observe, that is एक ही वेबसाइट 2-3 पेजेस के बाद में फिर से रिपीट हो रही है. सो आप जैसे डीप जाओगे वेब में सर्च करते करते, वैसे वैसे आपको लगेगा कि काम की चीज कोई नहीं मिल रही है और यू आर लॉस्ट. आप कहाँ तो भी घूम गए, नहीं समझ में आ रहा है. अगेन यू विल कम टू द होम पेज, राइट. तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए. इसलिए यू मस्ट नो द सर्च टेक्निक्स, how to make the effective searches by using all these online tools, right. अभी देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द लाइब्रेरीज आल्सो. लाइब्रेरीज में पहले आपको बुक्स और जर्नल्स मिलते थे. नाउ वी हैव टुडे मॉडर्न लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट which includes the information on audio, which in audio visual format, cassettes, CDs, DVDs. Then also networking concept is there. So we have digital libraries of e-resources. Then we also have the libraries which are internet based, that is virtual library. Okay, so I'm going to tell you the concept of virtual library and how to use all these internet based libraries for retrieving the relevant literature for your thesis work. Okay, so it is just like give a man a fish, feed him for a day, and teach a man to fish, he feeds himself for lifetime. So you must remember all these resources. Now when you compare research output of India with the world, then you can see this is the statistics of 5 years. 2019, these many research papers were published and these many were from India. And under open access publications, these many as far as the world is concerned, and only this much under open access, right? Now, I'm going to tell you again the concept of open access literature. See, open access is one step ahead of free access. Means, open access literature का मतलब होता है the literature which is available on www, which you can access free of cost, which you can download in full text without copyright barrier. Any barrier नहीं रहता copyright का. आपको कॉपीराइट फ्री लिटरेचर मिलता है. दैट मीन्स you not required to get the permission of the copyright holder over here. You can use that literature. The only condition is you should properly give the reference.
you should properly acknowledge it. You should properly cite it in your thesis, that particular source. Now, this open access literature is divided in various vehicles. Like you will get open access journals, you will get some open access archives. Under that, you will get institutional repositories. Then OER concept is there. OER stands for Open Educational Resources, and OCW stands for Open Courseware. And you also will get the repositories of electronic thesis and dissertations. Now we will see one by one. That is, first one is open access journals. See here, you can see ओपन एक्सेस जर्नल्स का मतलब होता है ये जर्नल्स आपको फ्रीली अवेलेबल है, फुल टेक्स्ट अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड एंड यूज ऑल द मटेरियल पब्लिश्ड इन दोज जर्नल्स. देखिए, आपके दिमाग में आता है कि ये फ्री क्यों दे रहा है, लेकिन इसमें ऑथर फंडेड मॉडल होते हैं और दूसरा इंस्टीट्यूशन फंडेड मॉडल होते हैं. कोई एनजीओ, कोई R&D संस्था ये पूरा आपका खर्चा उठाती है जर्नल पब्लिकेशन. और दूसरा होता है कि दे चार्ज फ्रॉम ऑथर. तो दैट ऑथर फंडेड मॉडल. लेकिन इसमें से आपको बहुत क्वालिटेटिव जर्नल्स मिलते हैं और आप देखेंगे कि देर आर सम डायरेक्टरीज और सिंगल विंडो एक्सेस टू ऑल दोस. The very famous is Directory of Open Access Journals, that is DOAJ. For science people, free medical journals is there, Highwire Press is there for all, and there is one more OpenJG. Okay. Now we will see one by one. We will see Directory of Open Access Journals. See, this is actually the homepage of DOAJ, that is doaj.org. And here you can search by journal name or articles by keyword. Okay. And the recent coverage of DOAJ is you will get the access to 15,054 journals. 12,088 are searchable at article level. These journals are published from 133 various countries, and these many research articles you can access at keyword level. Okay. And you can see one more, that is around 282 Indian journals are also listed in DOAJ. That means India से publish होने वाले 282 journals, you can search full text in 282 journals. Then see here, you can see these many journals, these many articles are available. You can also go by subject wise. This subject tree is given over here. Then you can also see publisher wise. Here you can see all the publishers from worldwide, all reputed publishers worldwide. Their journals are mentioned under open access. Then here I have just given the keyword COVID-19 and I retrieved 8,309 articles for COVID-19 from this particular website. And suppose if you want to download the full text article, then you can click on it and you can go to full text and see this is the full text article you have retrieved. आप यहाँ पे एक और आर्टिकल देख सकते हो. ये 10 पेज का आर्टिकल है फुल टेक्स्ट. Here you can download it, you can print it also. Okay. So इस प्रकार से फुल टेक्स्ट पेपर्स आपको DOAJ से मिलते हैं. Just go and make the keyword searches and download the papers. And this Highwire, this website also gives you free access to developing economies to all these journals. The journal list is given, and you can search along with the back volumes, back issues of each of the journal. Okay. Suppose I want to see this nutrition journal, I will click upon it, and you can see impact factor is also there, and these are the things given over here. And this is a table of content of July 2020. And see here, view article, then you will get the full text article from here. Okay. So in this way, and third one is free medical journals and science related journals. आप यहाँ पे देख सकते हो according to topic. And see, these are the free journals with impact factor greater than 2.
Then some of the journals, what they do, there is embargo period. That means publication के 6 महीने के बाद में वो फ्री हो जाते हैं, तो हमें चलता है ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए. And these are the journals which are having the impact factor greater than 5. And fourth one is Open JGate. Actually, JGate is the commercial consortia maintained by Informatics Bangalore, और उसका एक हिस्सा ओपन है जिसमें से आप अराउंड 7 to 8,000 जर्नल्स को आप सर्च कर सकते हो. ये सर्च पेजेस है. See, these are various faculties under which you are getting number of journals, and this is one search made for business keyword. These many retrievals are there. Suppose I want to read this article, then click on full text or HTML and you will get the web page. See, smart business, the customer is not always right. So this is full text paper retrieved over here. You can also make the advanced searches by using Boolean logic, stock prices, economic growth, and 2 papers are retrieved. So in this way you can use. You can also send your papers to open access journals. Okay, you can search from DOAJ and you can send your papers to these journals. These are actually the quick publications. देखिए यहाँ पे एक मैसेज है, the paper was accepted and published on the same day, and this can only happen in terms of e-journals only. देखिए कैसे होता है, ये जो e-journals होते हैं उनके अर्ली पब्लिकेशन साइट्स होते हैं, अर्ली साइट्स. If your article carries valuable information, then अगर आपका पेपर दिसंबर या जनवरी इशू के लिए एक्सेप्ट हुआ है, तो अर्ली डेट they will publish in their early site website. Okay, that facility is also there. So for quick publications, you must prefer these online e-journals. देखिए, this is D-Lib magazine published from USA. This is one of the journal from our field, library science, and here you can see I have published one paper in 2006 in this particular journal. मुझे इस जर्नल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. दैट इज देयर पॉलिसी इज, अगर आप पेपर भेजते हो तो 3 हफ्ते के अंदर वो आपको बता देता है वेदर इट इज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और नीड्स रिवीजन. तो ऐसे जर्नल्स आपको ढूंढना चाहिए जो आपको जल्दी से जल्दी पब्लिकेशंस दे. ये पर्टिकुलर जर्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली है. फ्रीक्वेंसी आल्सो मैटर्स फ्रेंड्स. अगर आपको थीसिस का पेपर है, जल्दी जल्दी पब्लिश करना है, तो यू शुड आल्सो टेक प्रिकॉशंस के आप एनुअल जर्नल्स फिर 6 मंथली जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स ना दें. देखिए, ये ओपन एक्सेस का फायदा क्या होता है. मेरा एक जर्नल पेपर एल्सवेयर जर्नल में पब्लिश हुआ था. was actually available in Science Direct, and after reading this particular paper, I received one opportunity from New York University at Albany, और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि आपका ये पेपर हमने पढ़ा है, so we are going to publish one encyclopedia of cyber behavior, and I need the same type of case study from India. मैंने उनको 25 पेजेस का इंडिया का केस स्टडी भेजा था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन दिस एनसाइक्लोपीडिया. सो इफ यू क्रिएट योर प्रेजेंस ऑनलाइन, academic presence, I am again telling you academic presence, then you will get more and more opportunities also. See, we have already seen that more than that is 282 journals from published from India are available under open access. So all the R&D organizations in India, government R&D organizations, and they are publishing some journals, then those journals are available under open access. Because we had NKC, that is National Knowledge Commission of India, in 2005, and they have given a unique recommendation that all the government funded research should be published under open access so that it will reach to the grassroots level people also. So हमारी इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस जो ये 11 जर्नल्स पब्लिश करते हैं, और ये 11 जर्नल्स हम सब्सक्राइब करते हैं, जैसे करंट साइंस, पर साइंस कॉलेज लाइब्रेरी में आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिलता है.
was started in 1932. So जुलाई 1932 के फर्स्ट इशू से लेके तो आज तक के इशू तक all the issues are available on www under open access. You can easily search and use these resources. Then INSA is there, all the INSA journals. Then IndianJournals.com. Then Kamla Raj. Then Medin. Then Medno. So all these publishers, they have made their journals open access. So this is all about digital library projects, friends. Now I would like to cover some digital library projects also. Okay, because along with the journals, that is the latest thoughts you get from the journals, but you also need classic books, right? So there are some digital library projects and those websites you can use. There is the biggest one, 1 million book project, and under this project they have digitized 1 million books, and they have created one library, that is Universal Digital Library. So this project actually it is the joint collaboration India, China, and US. And you can see 22 scanning centers are operating in India, including 4 mega centers, and 18 centers are running in China, right? And under this project, they have created one digital library, that is Universal Digital Library. You can make the search in this library. But here you can see to access this particular library, you will need either DJVU plugin or TIB plugins. Okay, that software you have to download in your system and then you can use this library. Here you can make the searches. Okay, you can click on this. So this drop down menu is there for you to select the subject. If your subject is not appearing in this drop down menu, then you can use your subject name as the keyword search. Okay. Then see for biology, this many books are there. You can click on any of the book, you will get over here. See, this is tip viewer. You can click and see the things. अभी यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जो कॉपीराइट फ्री बुक्स हो गए हैं, पुराने से पुराने बुक्स, उसको उन्होंने स्कैन करके रखा है. That means they have preserved the knowledge base for further generations. Okay. So how many books they have scanned? You can see subject wise. Just go through it. This is the slide. Just take a glance. This many books they have scanned. This is continued. Just take a look. So this is really a 1 million book project, and you can take help of this also. See, under social sciences, then under arts and humanities, there are different types of research approaches and research topics. So, one participant in an orientation course asked me one question. उनका रिसर्च का टॉपिक था कि माइथोलॉजिकल स्टोरी जो होती है, जैसे गणेश जी को हाथी का सिर क्यों है, उसके पीछे एक स्टोरी है, राइट? सो ऐसे स्टोरीज का कंपाइलेशन का उनका काम था. तो उसमें उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि मैडम मेरा रिसर्च टॉपिक है कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक रिसर्च क्वेश्चन कि हिंदू संस्कृति में स्त्रियों ने शादी के बाद मंगलसूत्र पहनना शुरू किया, उसके पीछे की कहानी क्या है? तो दैट क्वेश्चन वाज वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन फॉर मी. तो मैंने उनको एक ही चीज कहा, यू गो थ्रू दिस लाइब्रेरी, जिसमें आपको बहुत पुरानी से पुरानी बुक्स मिलेंगी, एंड यू सर्च इट. 3-4 महीने के बाद में उन्होंने मुझे फोन करके बताया, मैडम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द राइट रेफरेंसेस. तो ऐसे भी कुछ होता है. देखिए यहाँ पे पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे
कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिलेंगे, जहाँ से प्रिंटिंग शुरू हुआ वहां से भी कुछ किताबें हैं, यू कैन सी। एंड नाउ इट इज 2021। ठीक है, कुछ ओपन एक्सेस बुक्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे। देन आई वुड लाइक टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन सोर्स बनने जा रहा है, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका ब्रीदवाक्य है वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे केजी टू पीजी सब आपको मिलेगा, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इट इज अंडर ओपन एक्सेस। इट विल नीड लॉगिन, जो कि फ्री है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि फ्री है। आप यहाँ पे लिंक्स देख सकते हो। COVID-19 रिसर्च रिपोजिटरी, this is school level, then engineering, science, humanities, literature, law and management, like that you can see the and you can see over here how many 40 मध्ये इथे you can see the resources are available through this। देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, which is free। फिर मैंने कोविड रिपोजिटरी देखनी चाहिए, तो वो उन्होंने इस प्रकार से अरेंज किया है। मुझे जॉन हॉपकिंस का देखना है, ये डैशबोर्ड आ गया कोविड का। देन वीडियो लेक्चर्स आ गए, जैसे डोनेट प्लाज्मा। देन दीज आर सम इनोवेशन रिलेटेड COVID-19 आर्टिकल्स आर देयर। तो इस प्रकार से आपको मिलता है। आपको यहाँ पे आपके विषय का सर्च करना है तो 3 लेवल सर्च आप कर सकते हो। जैसे मैंने सोशल साइंसेस लिया, सोशल साइंसेस को लेने के बाद में मैंने यहाँ पे लॉ लिया, ठीक है। और ये 3rd लेवल पे मैंने एक क्रिमिनल लॉ लिया। तो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड मोर देन 2 लाख आइटम्स मुझे रिट्रीव हुए। दीज आर द 2 लाख आइटम्स। इसमें से मैंने ये पहले इसको क्लिक किया, ठीक है। तो ये खुल गया। ये है क्या? इट इज सिचुएटेड एट कुसाट लाइब्रेरी। मैंने जब इसको व्यू ओपन को क्लिक किया तो सी आई हैव गॉट द क्वेश्चन पेपर ऑन क्रिमिनल प्रोसीजर्स, एक यूनिवर्सिटी का। सो इस प्रकार से आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ लिटरेचर मिलता है। जैसे सोशल साइंसेस, लॉ एंड क्रिमिनल लॉ पे मुझे 525 आर्टिकल्स मिले, देन 4204 बुक्स मिले, 1 करस्पॉन्डेंस, 3 जर्नल्स, then 27,000 law acts, then more than 1,69,000 law judgments, then media articles 3, question papers 11 और recognition 1 मिला। तो आप ये इतने सोर्सेस आपने क्रिमिनल लॉ पे ये पर्टिकुलर सिंगल विंडो एक्सेस से निकाले हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपको काफी सारा मटेरियल ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी से भी मिलेगा। Then there is one more library, that is DOAB। जैसे मैंने आपको DOAG कहा, वैसे ही this is the directory of open access books। तो इसमें भी अभी ये लाइब्रेरी जो है ग्रो हो रही है, इसमें भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर भी क्रिमिनल लॉ को सर्च किया, so I received 8 books। This is the first book। तो हमने इसको क्लिक किया, सो ये 300 पेज का किताब यहाँ पे PDF फॉर्मेट में मिल गया। You can also download this book, you can also print this book, this is open access book। तो इस प्रकार से DOAB से you can download the books। देखिए some initiatives are there from government of India also। जैसे ये कल्चरल हेरिटेज डिजिटल लाइब्रेरी है and it is focusing on Hindi speaking regions of India, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक साहित्य, लोक साहित्य, ये सब चीजें आपको ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी से मिलते हैं, दैट इज कल्चरल हेरिटेज डिजिटल लाइब्रेरी। और आपको देखना है तो सिंहासन पत्तीशी जैसे चीजें, देखिए यहाँ पे लिंक्स भी है। देन राजस्थान, तो राजस्थान का परिचय, भौगोलिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, पुरालेखा स्रोत। देन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऑडियोज, देन डिजिटल इमेजेस, देन लोक संस्कृति डिफाइन करने वाले 74 सॉन्ग्स। तो इस प्रकार से these are the digital images, then ये पूरे ऑडियो सॉन्ग्स, then this is पारंपरिक साहित्य। if you click on बुद्ध की कहानियां, you will get all these बुद्ध की कहानियां, Buddhist fables, Buddhist classics, life and legends of Buddha and there is one more initiative, Mukta Bodha Indological Research Institute।
See here, go to library, click on it. Here you will get the collection of manuscripts. If you enter the library, तो आपको ऐसे इस प्रकार से किताबों का कैटलॉग मिलेगा. If you click on it, तो इस प्रकार से किताबें खुलती है. देखिए हर एक लाइब्रेरी का एक यूनिक इम्पोर्टेंस होता है. जैसे कि मेरी दोनों बेटियां भरतनाट्यम डांसर्स हैं और उनको अलंकार की विशारद की बात की जो एग्जाम होती है तो उसके लिए मटेरियल नहीं मिल रहा था, तो ये लाइब्रेरी से मुझे एक बुक मिला जो उनके काम आया. सो हर रिसर्च की हर एक सिलेबस की एक यूनिक नेसेसिटी होती है और हर वेबसाइट की हर डिजिटल लाइब्रेरी की यूनिक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फुलफिल करती है. See here the internal pages of that book. और यहाँ से आपको गोकर्ण वैदिक कलेक्शन मिलता है. इफ यू क्लिक ऑन दिस तो देखिए जोगलेकर फैमिली, कोडलेकर फैमिली, सांबा दीक्षिता फैमिली का कलेक्शन मिलेगा. इफ यू क्लिक ऑन जोगलेकर फैमिली, these are all the manuscripts digitized. If you click any one of it, you can see ये एक मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन आपको यहाँ पे आया. 21 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है. इस प्रकार से आपको ये सब मिलता है. सी इन इंडिया एक हमारा भारतीय कृति संपदा करके डेटाबेस बना हुआ है. दैट इज अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो ये नेशनल मिशन ने क्या किया कि इंडिया में जहाँ जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो मठ और मंदिरों में ज्यादा मिलते हैं. इसके पर्सनल कलेक्शंस होते हैं, उसको सबको लोकेट करके उसका एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाया है. एंड द नेक्स्ट स्टेज इज टू डिजिटाइज दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो वो जो डेटाबेस है दैट इज भारतीय कृति संपदा. यू कैन सर्च दिस डेटाबेस लाइकवाइज. जैसे ये संस्कृत में अवेलेबल है, एंड दिस इज इन पर्शियन. आप देख सकते हो where it is available. This is available at Bhandarkar Oriental Research Institute, महाराष्ट्र, पुणे. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उसके डिटेल्स यहाँ से मिलेंगे. Then there is one more initiative for school libraries, that is विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी. Again MHRD का ये इनिशिएटिव है. एंड अंडर दैट जो स्कूल लेवल के लिए रेफरेंस बुक्स लगते हैं अदर देन टेक्स्ट बुक्स, उनको उन्होंने इसमें डिजिटाइज किया है. उनकी ऑडियो वीडियो सीरीज जो है वो भी वो प्रोवाइड करते हैं. एंड हियर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन करके मैंने एक किताब एनवायरनमेंट का यहाँ पे डाउनलोड किया है. दैट इज डाउनलोड द बुक व्यू कंप्लीट. तो देखिए ये किताब है एनवायरनमेंट के ऊपर में, हर कॉलेज लाइब्रेरी के लिए मस्ट है. सो दे हैव डिजिटाइज्ड दिस. Okay, see in this way the students can access these reference books from this library. For children also there is one fantastic library, that is International Children's Digital Library. Click on read books, you will get all these browsing types. That is बच्चे को orange cover का ही किताब पढ़ना है तो वो click on that. This is age group, this is size of the book, and actually here you can see the characters. Okay. And here you can see this is one book, Elinda Who Danced in the Sky. Read this book. You click on this, you will get the full book. बच्चा आराम से यहाँ पे पढ़ता है. स्टोरी प्लेस जैसी चीजें जो एनिमेशंस ग्राफिक्स यूज करके they will tell the stories to the children. Okay, story place. If you want some more published by foreign authors, you can try Project Gutenberg. यहाँ पे भी हजारों किताबें ओपन एक्सेस आपको मिलेगी. Project Gutenberg. Then there is one more website for e-books, that is LibriVox. यहाँ पे आपको ऑडियो बुक्स मिलेगी. मतलब बहुत अच्छी साइट है ये, जो आपको बोलने वाली बुक्स यहाँ पे मिलती है. So here from here you can download the books and you can see search the books. जैसे इंग्लिश की 28,785 ऑडियो बुक्स है और दिस इज इन प्रोग्रेस. जैसे लैंग्वेज वाइज उन्होंने दिया है तो मैंने थोड़ा सा हिंदी का देखा, हिंदी के 5 बुक्स है. फिर मैंने मराठी का देखा, मराठी का 1 बुक है. दिस इज मानवीय अधिकाराचा जाहीरनामा एंड यू कैन डाउनलोड दिस
particular book at free of cost. तो LibriVox is also there. और आप इसको एडवांस सर्च में जाके आपको कौन से टाइप का चाहिए बुक वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे क्राइम मिस्ट्री फिक्शन है, एक्शन एडवेंचर है, चिल्ड्रंस नॉन फिक्शन है, ट्रैवल फिक्शन है. That way you can search. Now I am coming to a very important part you must know under open access, that is the initiatives taken by IncludeNet. The IncludeNet stands for Information Library Network, and ये IncludeNet जो है it is an autonomous body working under UGC. Okay. तो यहाँ पे Infoport इसका institutional repository Shodhaganga and Shodhagangotri. These are the open access initiatives, and e-content creation initiatives are EPG Pathshala and Vidyamitra. So इनके ये initiatives मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके काम आएंगे आगे चल के. See, this IncludeNet is providing a package of e-resources to universities that is known as eShodha Sindhu. Under eShodha Sindhu आपको कुछ इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेसेस मिलेंगे, आपको साइटेशन इंडेक्सिंग डेटाबेसेस वेब ऑफ साइंस मिलेगा, देन इंडेस्ट कंसोर्शियम मिलेगा फॉर टेक्नोलॉजी पीपल, राइट. और they are also maintaining Shodhaganga and Shodhagangotri, that is electronic thesis and dissertation repositories for India. See, these are all the databases, that is JGate plus MathSciNet, Web of Science. ये यूनिवर्सिटीज को मिलता है. See friends, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, who are research scholars, you must become the member of the library. देखिए, there is a one category for research scholars, और आपको वहां से जो भी आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलते हैं, उसको अवेल करना बहुत जरूरी है. इफ यू आर मेंबर, देन आपको इतने सारे डेटाबेसेस, फिर इतने सारे पब्लिशर्स के जर्नल्स जो है 145, 49, 19, ये सब जर्नल्स का एक्सेस मिलेगा. ऑल रेप्यूटेड पब्लिशर्स आर देयर वर्ल्ड वाइड. तो ये सब होने के लिए यू मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी, योर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, wherever you are enrolled for PhD. See, IncludeNet has also given one facility of Shodha Shuddhi. That means for the member institutions, they are giving online access to software, that is plagiarism detecting software. Okay, so this is also very important initiative. Then through IncludeNet, Enlist is provided to every college library. और NAC के जो फॉर्म होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है, आर यू द मेंबर ऑफ एनलिस्ट, मींस एनलिस्ट के आप मेंबर हो क्या, उसके लिए वेटेज दिया जाता है. सो दिस एनलिस्ट जो है वो 5,500 एनुअली भरने से आपको इसका एक्सेस मिलता है. एंड यू कैन सी ये पर्टिकुलर एनलिस्ट के थ्रू लाखों ई बुक्स आप यूज कर सकते हो और ई जर्नल्स का भी एक्सेस आपको मिलता है. देन IncludeNet का खुद का इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है. इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कैलिबर हर साल लेती है, तो उसके जितने भी कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम्स है आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम द ईयर, वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे. ये उसकी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है. सपोज आई वांट टू सी द आर्टिकल्स ऑन डिजिटल लाइब्रेरी, सो क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन पेज करेंगे तो ये पूरे आर्टिकल्स डिजिटल लाइब्रेरी के आते हैं. इफ यू क्लिक ऑन दिस लाइब्रेरियन टू साइब्रेरियन, तो ये पूरा आर्टिकल जो है उस कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में जो पब्लिश हुआ था वो आपको पूरा की पूरा पढ़ने मिलेगा. ओके, then IncludeNet is also maintaining one database, that is Vidwan database. और इंडिया की जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, see more than 62, तो वो एक्सपर्ट्स का एक डेटाबेस है. दे कैन रजिस्टर विद दिस डेटाबेस. और अगर कोई रिसोर्स पर्सन चाहिए तो आपको अलग अलग एक्सपर्टाइज के अलग अलग रिसोर्स पर्सन का बायोडाटा यहाँ से मिलेगा. See, Vidyamitra is e-content portal maintained by IncludeNet, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, एक्सपर्ट्स नोट्स मिलेंगे.
from all these subjects. Okay. So, see the expanded tree for social sciences, life sciences, then medical and health sciences. And in this way, you can access e-text resources, e-tutorial videos. Then these many are undergraduate, these many are postgraduate resources. Now I am coming to a very important source for your thesis, and that is Shodhaganga. Shodhaganga is our national ETD repository. You will get the awarded thesis by different Indian universities over here. Full text access you will get. See, I told you that आप एक अलग से थीमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाई है, तो उसमें एक थीम आप ये भी ले सकते हो कि research in Indian universities, PhD research in Indian universities. इसको भी आप skeleton में जगह दे सकते हो. And suppose if you are getting 15 to 16 thesis, तो आप उनके abstract लिख के भी आपके review of literature में एक उसका स्थान बना सकते हो यहाँ पे. और मैं कहती हूँ कि आपने उसको एक थीम बना के PhD लेवल रिसर्च का एक थीम बनाना ही चाहिए आपके रिसर्च. Okay. So here you can see, you can make the subject searches. You can access to more than 276 full text thesis from this website. Then there are some synopsis also. Then MRPs जो major research projects है उनके reports भी आपको देखने मिलेगा. 457 universities are contributing and 526 have signed the MOU. And here you can see University of Calcutta is on the first top post university. Second is University of Madras and third one is Pune University. So these are the top 10 universities. See, I want to make one search, sample search in Shodhaganga. देखिए शोधगंगा में मैंने एक कीवर्ड लिया बुद्धिज्म, राइट? So I searched for Buddhism. So I retrieved 166 theses on Buddhism in Shodhaganga. See, you can click on this and you can see this thesis is awarded by Pune University. And this is the full text thesis, title, certificate, right from bibliography and chapter wise, right? And here the links are given and you can see this is the table of content of 5 pages. The another part is Shodha Gangotri and this is for synopsis. That means if you want to see what are the similar topics of your thesis going on in other universities. See here I am giving again Buddhism word, so I received this one synopsis. So this is the synopsis actually, and you can see the full text of that synopsis. So Shodha Gangotri for ongoing research and Shodha Ganga is for awarded thesis. And you can make in this way the searches and you can download the full text thesis from Shodha Ganga. Right? See, in this way you can search. See friends, in Shodha Ganga for the word Buddhism, we retrieved 166 theses. Now I am giving you one more source for thesis and that is NDLTD. NDLTD stands for National Digital Library. Sorry, national, not national. It is Network Digital Library for Thesis and Dissertations. It is a global platform. If you click on this thesis resources here, तो आपको ये सब मिलेगा. Come down over here. See India Shodhaganga. India के लिए जो शोधगंगा है, that is the National ETT Repository for India for awarded thesis. वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रोव है, बांग्लादेश के लिए ये है, देन ब्राजील के लिए ये है, कनाडा के लिए थेसिस कनाडा है, यूरोप के लिए डार्ट यूरोप है, फ्रांस के लिए थेसिस फ्रांस है. और इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यूएस मिलेगा, यूके मिलेगा. तो ये जो NDLTD बनाया है, that is the common platform, global platform to search the thesis worldwide. So you can make the searches in this particular website also.
अभी मैं आपको ये NDLTD का ग्लोबल सर्च बताती हूँ। देखिए, we had used Buddhism keyword in Shodhaganga. We retrieved 166 theses awarded from Indian universities. And now I am using the same word, Buddhism, for NDLTD, that is Global Repository. So here I received 3121 thesis. देखिए आपका सर्च कैसे इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि बुद्धिज्म कीवर्ड्स में चाइनीज लैंग्वेज में बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन ये इंग्लिश के थीसिस भी तो आप देख सकते हो ना। सो आई clicked on that English language and I received 907 thesis. कहाँ 166, कहाँ 907। तो आपका सर्च यहाँ पे बहुत दायरा उसका बढ़ गया। मतलब आप आपका विषय इंटरनेशनल लेवल पे भी कैसे ग्रो हो रहा है वो आप यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बता सकते हो, राइट। एंड दीज ऑल साइट्स आर फ्रीली अवेलेबल, 24/7 एक्सेस इज गिवन। जैसे एक थीसिस आपको देखना है, बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका, तो इस प्रकार से आपको थीसिस रिट्रीव होता है। ये दूसरा थीसिस है। देन द एब्स्ट्रैक्ट बिब्लियोग्राफी, और इस प्रकार से आप उसको नेविगेट करेंगे तो फुल टेक्स्ट थीसिस देखिए 443 पेजेस का थीसिस रिट्रीव हुआ है आप by Daryl Ratton, and here you can see it was awarded by University of Cape Town, right, for degree of Doctor of Philosophy. तो इस प्रकार से you can search for thesis. So Shodhaganga and NDLTD will itself will be one theme to write a review of literature for all of you. Then see, there are some catalogs available. जैसे इंडकैट, दैट इज इंडियन यूनिवर्सिटी में जो कलेक्शन है वो आप घर बैठे थ्रू इंडकैट, दैट इज द यूनियन कैटलॉग, आप घर बैठे के देख सकते हो। अगर आपको कोई किताब चाहिए तो कौन सी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो आप घर से ढूंढ सकते हो। सेम OCLC वर्ल्ड कैट, ये भी एक वर्ल्ड का कैटलॉग है। एंड देयर इज वन मोर नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। देखिए दिस इज इंडकैट, और आप इसमें सर्च कर सकते हो बाय टाइटल, ऑथर, पब्लिशर। आप यूनिवर्सिटी वाइज भी सर्च कर सकते हो। एंड सपोज मैंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये किताब को सर्च करना चाहा तो मुझे बराबर बताता है कि कौन सी लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है। सपोज आपको अमरावती यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कलेक्शन घर बैठ के देखना है, यू कैन सर्च थ्रू इंडकैट। वैसे ही वर्ल्ड कैट है और इसके बहुत सारे सर्विसेज है। सो दिस इज आल्सो गुड वेबसाइट। और तीसरा है नेशनल यूनियन कैटलॉग फॉर साइंटिफिक सीरियल्स। इसमें डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस भी मेंटेन करते हैं। CSIR का जो हेडक्वार्टर है निस्केर वो इसे मेंटेन करता है। So in this way you can send the email and you can also get the copies of your required literature. Now to conclude this open access talk, I would like to show you some open courseware. देखिए open courseware means this is the course, this is the drafted syllabus, these are the lecture notes on that syllabus prepared by experts, these are the audio lectures, these are the video lectures, these are the assignments, these are the solutions, and these are the online examinations, and this is the result. अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है so that concept is known as open courseware. देखिए MIT यूनिवर्सिटी ने उनके 2200 कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन किए हैं। See, these are the courses according to department. आपको कोई भी डिपार्टमेंट का जैसे मैनेजमेंट का, सो अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स, और इसमें सपोज मुझे ये कोर्स देखना है तो उसके लेक्चर नोट्स उनके एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सी इन दिस वे यू कैन क्लिक ऑन एनीवन एंड यू विल गेट द टीचिंग नोट्स। तो ये ओपन कोर्सवेयर का ये है। उसके बाद में दिस इज फॉर इकोनॉमिक्स, then you can go for lecture notes, exam solutions, click on PDF and you will get, these are some history courses. Then there is one more OCW initiative from old IITs,
जो पुराने 7 ओल्ड IITs है वो और IISc का कोलैबोरेटिव है, दैट इज NPTEL, एंड दिस इज अ वेरी गुड पोर्टल फॉर एवरी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एंड स्कॉलर। और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे वेब कोर्सेस है और वीडियो कोर्सेस है, दीज टू आर द कोर्सेस, दीज आर द सब्जेक्ट्स, लाइकवाइज यू कैन सर्च। देखिए इसमें से मैंने एक वीडियो कोर्स चुना। यहाँ पे देखिए IIT के प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन आपको इस वीडियो के द्वारा मिल रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, यू कैन सर्च थ्रू ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो IIT जम्मू, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास एंड ऑल। जैसे उनके वेब कोर्सेस भी है, वेब कोर्सेस में आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो इस प्रकार से उनके लेक्चर नोट्स, उनके एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए लेक्चर नोट्स आपको यहाँ से मिल जाए। ई ज्ञानकोश इज फॉर इग्नू, जो हमारी नेशनल डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है इग्नू, तो उनके जो बुकलेट्स है, these are all digitized and available over here। आप देख सकते हो इसको, जैसे कम्युनिटीज एंड कलेक्शन को आपने क्लिक किया या तो आपको ये सब मिलेंगे कलेक्शंस। इसमें से आपको जो चाहिए कोर्स उसको आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स क्लिक किया, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, और इसमें आप देख सकते हो व्यू ओपन करने से ये एक्सपर्ट हमको लाइब्रेरी एंड सोसाइटी के बारे में बता रहा है। देन स्कूल्स है डिफरेंट उनके, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, तो इस प्रकार से मास्टर डिग्री प्रोग्राम मुझे उनमें देखना है। तो ये मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, उसमें ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ब्लॉक है, ब्लॉक में चैप्टर है, और इसको आपने ओपन किया तो इस प्रकार से उनके पूरे जो बुकलेट्स है दीज आर अवेलेबल टू यू। इसको भी रजिस्ट्रेशन लगता है, बट दिस इज फ्री रजिस्ट्रेशन। NCERT के पूरे टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है इन PDF from class 1 to 12। सिलेक्ट द क्लास, सिलेक्ट द सब्जेक्ट, सिलेक्ट द बुक। ये मैंने जीव विज्ञान हिंदी वाला निकाला है, मुझे चैप्टर 6 पढ़ना है, आई विल क्लिक ऑन चैप्टर 6। ये देखिए ये चैप्टर खुल गया, वंशागति के आणविक आधार। ऐसे ही कुछ ई कंटेंट प्रोजेक्ट्स हुए थे स्कूल लेवल के, बाद में वो मर्ज होके बड़े बड़े इसमें गए। विद्यावाहिनी करके एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने शिक्षा और विजन नेट बनाया, उसमें CBSE के 9, 10th, 11th, 12th के लेक्चर नोट्स थे। जैसे फिजिक्स है, डिस्क्राइबिंग मोशन, उसमें 1 क्वेश्चन क्या आता है उसका आंसर क्या है, 2 मार्क क्वेश्चन क्या आता है उसका आंसर क्या है। और विजन नेट में उन्होंने मस्त एनिमेटेड प्रेजेंटेशन और लेक्चर नोट्स दिए थे। सी दिस इज फॉर CBSE 11 बायोलॉजी। तो द लिविंग वर्ल्ड, इसको आप देखेंगे व्यू एनिमेशन, तो ब्यूटीफुल स्लाइड्स उन्होंने टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस के लिए बना के दिए थे। Then there is one more very important initiative of e-content creation, that is EPG पाठशाला। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एक्सेस दिया है। ये MHRD का प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। इसमें मैंने लाइफ साइंसेस को खोला और हम फूड एंड न्यूट्रिशन को क्लिक करते हैं तो इसमें आपको पहले पेपर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने फूड साइंस को सिलेक्ट किया, उसमें मॉड्यूल्स आए तो हमने फूड ग्रुप्स को सिलेक्ट किया। तो देखिए ये पूरे ई टेक्स्ट शुरू हो गए, यानी लेक्चर नोट्स। देन सेल्फ लर्निंग में जो है वो वीडियो लेक्चर्स आते हैं, इसको क्लिक कर देखिए ये वीडियो लेक्चर्स है, ये टीम है, ये टीचर बैठ के पढ़ा रही है आपको, ये स्लाइड्स है। इस प्रकार से आपको EPG पाठशाला में मिलता है। उसके बाद में स्वयं के ऑनलाइन कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। सी मोर देन 244 फ्री ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है इन अंडर Moodle प्लेटफॉर्म। अभी UGC का भी एक इनिशिएटिव है CEC, दैट इज कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, और इसमें आप देख सकते हो वो सैटेलाइट के द्वारा लेक्चर्स का प्रसारण करते हैं, ये कंटेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी देते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी क्या होती है? लर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आइडियल आंसर, और यहाँ पे एक टीचर बैठ के आपको पढ़ा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेके उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये मैंने जब देखा इन 2009 तो मुझे पता चला कि ये इतने ऑब्जेक्ट डिफाइन किए हैं, और लाइब्रेरी साइंस का जो है एक ही ऑब्जेक्ट था।
तो मैं इंस्पायर हो गई और मैंने भी एक यूजीसी को मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट दिया था, क्रिएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इन लाइब्रेरी साइंस बेस्ड ऑन यूजीसी मॉडल करिकुलम। और इस प्रकार से ई कंटेंट्स भी वो आपको देता है, लर्निंग ऑब्जेक्ट भी देता है, जैसे मनी प्लांट एंड ऑल। और जैसे कि मैंने कहा था, मेरा प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया, जिसके लिए मुझे 7,63,000 यूजीसी ने दिए थे। और मैंने ऐसा एक पोर्टल बनाया, और आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेस है, मूडल में बनाया था, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऐसे क्विजेस भी बनाई थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। और यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में इस प्रकार से लेक्चर नोट्स थे, इस प्रकार से वीडियो लेक्चर्स 2009 में मैंने बनाए थे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल ओपन एक्सेस। आपको बहुत सारे ओपन एक्सेस लिटरेचर अवेलेबल है। उसके बारे में अगर आपको जानकारी है, स्पेसिफिक एजुकेशनल वेबसाइट्स के बारे में, so you can use this free literature for your thesis also, free and qualitative literature. So friend, here I would like to conclude this first talk, and we will take 5 minutes break, and then I will start with the second talk. Over Okay, to you, madam. Preeti madam. Yes, okay, ma'am. 5 minutes break.